Friends, welcome back to my YouTube channel. This is the third video of preparation of UPSC Assistant Architect exam. If you are new to this channel, please subscribe this and also share with your friends who is pursuing or preparing for architectural government exams. So let's begin with the first question of today's video. The establishment of Central Pollution Control Board CPCB and State Pollution Control Board SPCB are done under. So the correct answer of this question is option number B, the Water Prevention and Control of Pollution Act. तो दोस्तों जो CPCB और SPCB जो बोर्ड्स हैं उन्हें 1974 में एक वाटर एक्ट आया था, उसके अंडर इसे फॉर्म किए थे दोनों बोर्ड्स को। और ये जनरली जो कंट्री में हर टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइस, एयर, वाटर। और इसके अलावा ये CPCB जो है वो गाइडलाइंस भी बनाता है कि किस पर्टिकुलर लैंड यूज़ में कितना नॉइस पॉल्यूशन हो सकता है या कितने लेवल का, कितने डेसिबल का नॉइस अलाउ है। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा होगा कि रिवर बोर्ड्स एक्ट, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज़ के लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिसोर्सेज लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फूड which constitutes life support comes under. So it comes under the ecological services. So the correct answer is option number A. Okay, let's move to the next question, that is, if the outside temperature is 10 degrees Celsius and the inside temperature is 22 degrees Celsius over a 10 meter square brick wall having transmittance value of 1.5 watt per meter square per Kelvin, what is the heat flow rate? So एक फॉर्मूला है हीट फ्लो रेट का, that is Q equals to delta T then A into delta U। इसमें डेल्टा T है टेम्परेचर डिफरेंस, A is the area where the temperature is passing, then delta U is the transmittance value। Okay, so now let's solve this question. We will see delta Q equals to delta T is 22 minus 10, then A is given in the question, that is 10 meter square, then delta U is also given 1.5. so when we solve this, comes 180 watt. So the correct answer of this is option number C, positive 180 watt. Let's see next question. Which one of the following statement is not correct for designing shelter for hot dry climate? A is building should have open elongated plan shapes. So ये जो statement है ये false है. Then shading of roof, walls and outdoor space is critical. So it is true, क्योंकि
अगर हम ऐसे हॉट ड्राई क्लाइमेट में अगर हम रह रहे हैं तो जो भी वॉल्स और रूफ है उससे उसकी शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द लार्जर डायमेंशन ऑफ अ बिल्डिंग शुड प्रेफरेबली फेस नॉर्थ एंड साउथ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो लार्जर डायमेंशन है बिल्डिंग का वो नॉर्थ और साउथ में फेस होना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सपोज दिस इज़ द build form, this is our building, and this is the north direction, this is the east direction, this is the south direction, and this is west. Okay, then this is the sun's direction. Okay, and it is slightly moved towards the south direction. This is the sun path diagram. Okay, then अगर हम ये फेस जो कि ईस्ट साइड में है, और हॉट ड्राई क्लाइमेट में जनरली ऐसा होता है कि जो हीट होती है कुछ ज़्यादा ही होती है। तो अगर हम इस फेस को, ईस्ट साइड के फेस को अगर हम बड़ा रखेंगे तो ये बहुत मैक्सिमम हीट जो होगी हमारे घर में आएगी। सिमिलरली अगर साउथ में हम घर के किसी भी साइड का जो लॉन्गर साइड का फेस को रखेंगे तो ये सनलाइट कुछ ज़्यादा ही एंटर होगी। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो साउथ या नॉर्थ साइड में हमें लार्जर फेस करने होंगे ताकि जो ईस्ट और वेस्ट साइड में हमें शॉर्टर साइड मिले, जिससे लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट विल एंटर दी होम. Okay, then there is also a D statement is given. An enclosed, compactly planned and essentially inward looking building is the most suitable. So what is inward looking building? So inward looking building is a building having a niche or a courtyard. So these kind of building is generally known as inward looking building. This is inward looking building. तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरीके का होता है तो हीट जो होती है काफ़ी इजीली ट्रांसफ़र होती है और जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, वेंटिलेशन प्रॉपरली होता है अगर इस तरीके का डिज़ाइन होता है तो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर ए, बिल्डिंग शुड हैव ओपन एलोंगेटेड प्लान शेप. ओके दोस्तों, इसका ही एक और एग्जांपल है कि जो आपने देखा होगा कच्छ के जो हाउस हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होते हैं, उनका काफ़ी कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन होता है और ओपनिंग भी उसमें स्मॉल होती है और जनरली वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो हीट को एब्जॉर्व कम करे। जैसे कि कच्छ हाउसेस में, कच्छ के जो भुंगा हाउसेस हैं उसमें मड का यूज़ होता है वॉल के लिए और थैच रूफ यूज़ होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ NO3 into N2 by anaerobic bacteria is called, so this is called denitrification. Now see the next question. Consider the following statement. HUDCO is public undertaking under Ministry of Housing and Urban Affairs. So
This statement is true. RERA scheme is for promoting and regulating the real estate sector. This is also true. Then PMGSY is launched for mission of housing for all. This is a false statement. PMGSY जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये रूरल रोड को फोकस करती है, रूरल रोड्स डेवलपमेंट को फोकस करती है. ओके, देन स्टेटमेंट 4 इज BSUP स्कीम इज प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर. दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. जो BSUP है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर, और इसका मेन पर्पस था कि जो अर्बन पुअर्स हैं उन्हें बेसिक सर्विसेज जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करना. और हाउसिंग के लिए जो था वो था इंदिरा आवास योजना, जो कि अभी हो गया है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन नंबर D. 1 and 2 only, these two statements are correct. Next question is identify the first skyscraper building. So the correct answer is the first skyscraper of the world is Home Assurance Building, which is located in Chicago, and it was designed by William Lee Baron Janney in 1884. और यह दुनिया की फर्स्ट स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है. और दोस्तों जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसके आर्किटेक्ट थे यासुओ मात्सुई, विलियम F. लैम, ग्रेगोरी जॉनसन एंड आर्थर लूमिस हार्मन. देन बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट थे स्किडमोर, ओइंग एंड मैरल. क्रिजरल बिल्डिंग के आर्किटेक्ट थे विलियम वैन एलन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाउसिंग डिमांड इज द टोटल रिक्वायरमेंट while need is associated with affordability. So this is all our two statement. TDR means achieving additional FAR in lieu of the area surrendered by the owner of the land. This is true. And the housing need is not standard across cultures and other societal groups. So it's a false statement. So the correct answer of this is 1 and 2 only, option number A. The next question is the housing trend of expandable dwelling is associated with. तो दोस्तों एक कंसेप्ट है एक्सपेंडेबल हाउसिंग का, जिसमें होता ये है कि एक प्लॉट होता है, उसमें एक कोर हाउस होता है पहले, विच इज़ समवेयर इन द प्लॉट. देन टाइम के साथ साथ फॉर सपोज दिस इज़ फेज़ 1, तो फेज़ 1 में ये इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है, दिस इज़ कोर. ओके, सपोज दिस इज़ दी फेज़ 2, तो हम ये हुआ फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन. देन एडिशनल इसमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कुछ और अगर बिल्ड फॉर्म चाहिए तो हमने इसमें बिल्ड कर लिया, तो ये फेज़ 2 का हो गया. सिमिलरली अगर हम इसे एक और फेज़ तक एक्सटेंड करते हैं तो हमारा ये फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन, देन हमारा फेज़
2 का कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ फेज़ 2 कंस्ट्रक्शन, दिस इज़ फेज़ 1 कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा हमें अगर कुछ और कंस्ट्रक्शन चाहिए तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये सिमिलर प्लॉट में हमने 3 बार कंस्ट्रक्शन कर दिया, बट इस जो कोर है, ये जो कोर एरिया है, इसे हम इसका मेन कंस्ट्रक्शन मानेंगे क्योंकि इसके अराउंड ही सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है कोर हाउसिंग। जो एक्सपेंडेबल ड्वेलिंग का कंसेप्ट है वो कोर हाउसिंग में होता है। इसके अलावा रो हाउसिंग सबको पता है कि एक प्लॉटेड हाउसिंग का पार्ट है। इसमें जो हाउसेस होते हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं। ये अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं या एक ही तरह के भी हो सकते हैं, बट ये जनरली एक दूसरे से अटैच होते हैं और इसका एटलीस्ट एक वॉल कॉमन होता है। जैसे इसमें ये है, इस केस में ये वॉल कॉमन है। देन अपार्टमेंट हाउसिंग में एक फ्लोर में एटलीस्ट 2 to 4 और 2 to 8 फैमिलीज़ भी रहती हैं हर एक फ्लोर में, और ये हाई राइज कंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। देन डिटैच्ड हाउसिंग में जनरली ये इसे प्लॉटेड हाउसिंग भी बोलते हैं। इसमें एक प्लॉट में कंस्ट्रक्शन होता है, देन उसी लाइन में अगर एक और प्लॉटेड हाउसिंग है तो इसकी एक प्रॉपर खुद की बाउंड्री होती है। देन उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होगा और या उसका जो भी बिल्टअप होगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और ये एक दूसरे से, इसमें कोई भी एडजेसेंट वॉल नहीं होता। इसमें और रो हाउसिंग में यही डिफरेंस है कि इसमें कोई भी कॉमन वॉल नहीं होता, और रो हाउसिंग में एक एडजेसेंट वॉल होती है जो कि एक कॉमन वॉल की तरह यूज़ होती है। सो दिस इज़ डिटैच्ड हाउसिंग। Next question is, as per Kenneth Frampton, which one of the following built-up form of urban settlement is assumed to be the cost-effective in terms of land use and also has many social advantages in terms of services? So जो कैनेथ फ्रैम्पटन थे, उन्होंने उनका एक थीसिस था और उन्होंने एनालिसिस किया था कि जो लो राइज और हाई डेंसिटी वाले हाउसेस होते हैं या कंस्ट्रक्शन होता है वो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो लो राइज और हाई डेंसिटी हम बोल सकते हैं कि सपोज़ एक बिल्डिंग में 2 या 3 ही मल्टीपल फ्लोर्स हैं और उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट फैमिलीज़ रहती हैं। सपोज़ दिस इज़ हाई डेंसिटी और 4 to 5 families, which means at least 25 to 30 peoples. तो इस तरह का जो हाउसिंग होता है, लो राइज और हाई डेंसिटी हाउसेस, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। ये उन्होंने अपने एनालिसिस से निकाला था। और इसके अलावा इसके कुछ सोशल एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे if more people are living in a building, then there is much interaction will happen between them, and therefore they will understand each other easily. Next question is, the antique statue of Hercule Lanarin was first discovered by, so this statue was discovered by Camillo Paderni, जिसे कंसीडर किया जाता है कि फर्स्ट पर्सन हु एक्सकेवेटेड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द हर्कुलैनेरिन
इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी टफ है, सो प्लीज़ बेयर दिस। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं, एक्यूबियरे, इन्होंने वार्प ड्राइव डिस्कवर्ड की थी, जो कि एक फिज़िक्स का कंसेप्ट है, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। प्रिंस डी एल्बियफ, ये प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ लॉरेन भी कहा जाता है इन्हें। देन मारिया अमालिया इज़ द क्वीन ऑफ टू Sicilies. Let's move to the next question. The famous treatise De Architectura of Classical Architecture is written by, so इसके जो राइटर थे वो थे विट्रूवियस। ये काफ़ी फेमस बुक है, और ये जो विट्रूवियस है ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ मार्कस विट्रूवियस पोलियो। और इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे विट्रूवियस ट्रायड भी बोलते हैं। विट्रूवियस ट्रायड, ये बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट को इंटरसेक्ट किया था। ये हुआ सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी जिसे हम ड्यूरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। देन ये हुआ उसकी बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये यूज़फुल है। देन थर्ड वन इज़ अट्रैक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल है। सो इन्होंने अपने इस ट्रायड में ये 3 एलिमेंट को कंबाइन किया था, और ये काफ़ी फेमस ट्रायड है, विट्रूवियस ट्रायड। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। Now move to the next question. Which one of the following international organization is not associated with protection of cultural heritage? So दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी के ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करता है। इसके अलावा इंडिया में एक स्कीम है हृदय, जो आपको पता होनी चाहिए। हृदय, इसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसी तरीके से कुछ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जो वर्क करती हैं, जैसे यूएस ब्लू शील्ड, जो कि कल्चरल हेरिटेज और मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करती हैं। इसके अलावा ब्लू शील्ड का एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस स्लोगन कंजर्व डू नॉट स्टोर इज गिवन बाय, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉर्ज डेहियो। ये एक हिस्टोरियन है, और इन्होंने कहा था कंजर्व डू नॉट स्टोर वाला जो स्लोगन है वो इन्होंने दिया था। इसके अलावा जो रॉबर्ट गारलैंड है, ये एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। डेविड लोवेंथेल अगेन एक हिस्टोरियन है। Next question is a masterpiece of Roman architecture, Montecitorio obelisk, was restored by using, so the correct answer of this is ये जो Montecitorio obelisk है, इसे रिस्टोर करने के लिए जो ग्रेनाइट का यूज़ हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। और जो ये इसका रिस्टोरेशन का जो वर्क था, इसे किया था जियावोनी एंटीनोरी, इन्होंने हैंडल किया था।
And now this is the last question of this video. Question number 41 is, which one of the following is a good example of a successful application of thin film technology in a design context? So ये जो थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है ये जनरली यूज़ होती है एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास की तरह. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास. तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस विल श्योरली मोटिवेट मी टू मेक such more videos. Until then, goodbye. Thank you.